ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ انکل آپ مجھے کریکٹ کہہ رہے ہیں؟ ونیلا نے اندر آتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور وہ بھی باہر کے ایک شخص کے سامنے؟ اس باہر کے شخص کا دعویٰ ہے کہ تم اسے اسپتال سے بھگا کر لائی ہو، انکل پال نے طنزیہ لہجے میں فرمایا۔ آپ نے رائفل کیوں تان رکھی ہے؟ نیچے کریں، آپ پہلے بھی کئی بار غلطی سے رائفل چلا چکے ہیں۔ انکل پال نے رائفل نیچے کی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اتنا ڈر تو مجھے سیافام گوریلوں کی فائرنگ میں محسوس نہیں ہوا تھا جتنا کہ انکل پال کی رشا زدہ رائفل کے سامنے ہوا تھا۔ جانے کب بھی اس کی لرزتی انگلی ٹریگر دبا دیتی اور میں خواہ خواہ مارا جاتا۔ ونیلا نے آگے بڑھ کر انت رائفل لی، کان میں اعلیٰ سماعت کا لگا ایئر فون درست کیا اور پیار سے بولی، انکل آپ آرام کریں، اس شخص کے بارے میں آپ کو صبح بتاؤں گی، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ بادل نخواستہ انکل پال جانے پر رضامند ہوئے۔ امید ہے تم اس نوجوان کی مدد پر اکتفا کرو گی، اس سے عشق پر آمادہ نہیں ہو جاؤ گی۔ انکل آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ ونیلا نے احتجاج کیا۔ میں تمہیں ایسا ویسا نہیں سمجھتا، مگر فلموں نے آج کل لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ انکل پال زیر لب بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ونیلا نے گویا سکون کا سانس لیا۔ تم بھوکے ہو تو میں تمہارے لیے کچن تک جانے کی زحمت کر سکتی ہوں۔ خاص نہیں، 1-2 سینڈوچز اور کافی کا 1 کپ کام دے گا، میں نے جواب دیا۔ ونیلا مجھے لے کر فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں واقع کچن تک آئی۔ میں وہاں موجود چھوٹی سی کھانے کی میز کے ساتھ رکھی کرسی پر جا بیٹھا اور ونیلا انڈے بائل کرنے لگی۔ میں نے انگلیوں سے میز پر طبلہ بجاتے ہوئے کہا، تم میرے لیے اتنی زحمت کیوں کر رہی ہو؟ کرنل بوگارٹ بذات خود طاقتور شخص ہے، اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرے۔ مگر اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بوگارٹ کام کرتا ہے، وہ بین الاقوامی دہشت گرد ہیں، اور ان کے لیے انسانی جان چونٹی سے بھی زیادہ بے وقت ہوتی ہے۔ ان سے دشمنی کا مطلب روئے زمین سے غائب ہو جانا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اسے کافی کے لیے پانی چڑھایا۔ نہیں، میں تمہیں ان خطرات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اگر تم نے مجھے پناہ دی تو ان لوگوں کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہو۔ میں نہیں سمجھتی کہ تمہیں پناہ دینا اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی 1-2 دن کی بات ہے، میں اپنے کزن ہنری کو صوبائی دارالحکومت بھیجوں گی، وہاں سے حکومتی افسران آ کر تمہیں لے جائیں گے اور میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ حکومت میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ اچھا ہی کرے گی، کیونکہ تم نے جنوبی افریقہ کی سرزمین پر کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں ڈی پورٹ کر دیا جائے گا، تم اپنے ملک واپس چلے جانا۔ حکومتی تحویل میں آنے کی صورت میں لازماً ان کی نظروں میں آ جاؤں گا جو میرے در پہ ہیں، اور ایک بار انہیں موقع مل گیا تو وہ مجھے دوبارہ اغوا کر لیں گے۔ ونیلا نے سینڈوچز تیار کر کے میرے سامنے رکھے۔ تم شاید ان سے زیادہ ہی معروف ہو، ہونا ہی پڑتا ہے، میں نے سر ہلا کر کہا۔ دنیا کی واحد سپر پاور ان کی پشت پناہ ہے اور یہ اس کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ونیلا کو میری بات پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ جب تک میں سینڈوچ سے ختم کرتا اس نے کافی تیار کر لی تھی۔ فارم ہاؤس اندر سے خوشگوار حد تک گرم تھا، اس کے باوجود کافی اچھی لگی۔ باہر خاصی خنکی تھی۔ میں سوچنے لگا جان گرے کہ چنگل سے نکلنے کے لیے میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے تھے، مگر ساری تدبیریں ناکام گئیں۔ حتیٰ کہ میں مایوس ہونے لگا تھا، مگر جب تقدیر نے میری رہائی کا فیصلہ کر لیا تو میں کتنی آسانی سے اس کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی تھی اور جب جاگا تو آزاد تھا۔ کافی پیتے ہوئے میری نظر اچانک فون پر پڑی۔ مجھے خیال آیا تھا کہ کاجل سے بات ہی کر لی جائے۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے اس سے بات کیے ہوئے۔ جب میں خلیل کو جوائن کرنے بمبئی پہنچا تھا تب آخری بار کاجل سے بات ہوئی تھی۔ میں نے ونیلا سے کہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ایک کال کر لوں پاکستان۔ ضرور، اس نے کہا، اگر تم چاہو تو اکیلے میں بات کر لوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جمشید پیلس کا نمبر ملایا۔ جمشید علی کے بعد اس گھر کا خیال بھی میرے لیے خواب ہو گیا تھا، مگر اس کا فون نمبر جیسے میرے دل پر لکھا تھا۔ گھنٹی بجی، تیسری بیل پر کسی نے فون اٹھایا اور خمار آلود لہجے میں بولا، ہوئز۔ لہجے سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جنید تھا۔
मायूसी की एक लहर मेरे रगे पैर में दौड़ गई थी और मैंने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरा नंबर मिला। इस बार खासी देर बाद जाकर किसी ने फ़ोन रिसीव किया। एक मध्यम सी आवाज़ आई, हेलो। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। आवाज़ शायद काजल की थी। मैंने कोशिश करके कहा, हेलो, कौन? इस बार आवाज़ साफ और बेताब थी। वो काजल ही थी। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं हो? काजल। शिद्दत जज्बात से मेरी आवाज़ रुनने लगी थी। मैं यूसुफ हूँ। यूसुफ? उसने चीख मारी थी। तुम झूठ बोलते हो, तुम मेरे यूसुफ नहीं हो सकते। मैं यूसुफ हूँ। इस बार मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुम्हारा यूसुफ? काजल, तो तुम सच कह रहे हो ना? ये मजाक तो नहीं है ना? मेरे खुदा, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। जान, ये सच है। मैंने उसे यकीन दिलाया तो वो रोने लगी थी। यूसुफ, जालिम कमीने कहाँ थे अब तक? मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? तुम कितने बेदर्द हो। मैं मजबूर था काजल, अब तक दुश्मन की कैद में था। वो खलीज से मुझे अगवा करके ले गए थे और खलीज को भी तबाह कर दिया था। काजल खुद को संभालने लगी। मैं बता नहीं सकती कि जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरी क्या हालत हुई थी। तब से अब तक मैं दुश्मन की कैद में था। यूसुफ, क्या अम्मी और भाई? अरे नहीं, इनका बस चले तो मुझे दुनिया ही से नाबूद करते, मगर ये इनसे लाख गुना ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। बड़ी मुश्किल से इनके चुंगल से निकला हूँ। इस वक्त एक मेहरबान के घर हूँ, इसके पास से फ़ोन कर रहा हूँ। इसका नंबर क्या है? काजल ने पूछा। मैंने वनीला से उसका नंबर और कंट्री कोड दरियाफ्त किया। इसने मुझे कागज़ पर लिख कर दिया। काजल ने मशकूक लहजे में कहा, यह आवाज़ किसी लड़की की है। यही मेहरबान है, इसने मुझे दुश्मन के चुंगल से निकाला है और अपने घर में पनाह दी है। मैंने जल्दी से वजाहत की। काजल की हासिल तबीयत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। काजल ज़रा चुप हुई। यूसुफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ काजल, तुम ठीक हो? मुझे लग रहा है कुछ देर पहले तक मैं मुर्दा थी, अब जिंदा हो गई हूँ। यूसुफ, तुमने मुझे मार दिया था। तुमसे बात करने से पहले मैं भी खुद को ऐसा ही महसूस कर रहा था। यूसुफ, मेरे पास कब आओगे? मैं इंतज़ार करते करते थक गई हूँ। अम्मी मुझ पर शादी के लिए दबाव डालती रही थी। इनकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हो गई होगी, मैंने तलखी से कहा। मेरे मरने का सुनकर इन्होंने कोई पार्टी नहीं दी थी? प्लीज़ यूसुफ। काजल फिर रो दी तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी काजल, माजी का जहर मेरी जुबान पर आ गया था। यूसुफ, तुम कब आ रहे हो? अभी मैं जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी तौर पर हूँ। शायद हुकाम मुझे डिपोर्ट कर दें, तब मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। तुम लंदन आ जाओ, अगले हफ्ते मैं वहाँ जा रही हूँ। लंदन आने में वक्त लगेगा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, पहले इसे बनवाना होगा। यूसुफ, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ तुम्हारी जान। उसने इतना ही कहा था कि अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया। मैंने कई बार क्रैडल पर हाथ मारा, फिर दोबारा मिलाया, मगर इस बार फ़ोन अंगेज था। मैंने सोच कर रख दिया कि शायद दूसरी तरफ से काजल मिलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुझे अंगेज मिल रहा है। मगर खासी देर तक इस तरह भी अंदाज के बावजूद भी फ़ोन खामोश ही रहा था। वनीला जो मेरी कैफियत देख रही थी, उसने पूछ लिया, क्या बात है? क्या कोई मसला है? ये कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे? मैंने हैरत से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी औरत से बात कर रहा था? क्योंकि मैंने सारी बात अपनी जुबान में की थी। वनीला हंसी। तुम जिस अंदाज में बात कर रहे थे, एक मर्द इस अंदाज में किसी ऐसी औरत से बात कर सकता है जिसे वो चाहता हो। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? उसने बेबाकी से पूछा। हाँ, वो इस दुनिया में वाहिद हस्ती है जिसे मैं सारी शिद्दतों से चाहता हूँ। इसका नाम जेल है। काजल, मैंने तस्दीक की। ना जाने क्या मसला है, लाइन कट गई है। तुम फिर कर लो, उसने फराग दिली से इजाज़त दी। नहीं, इस बार मुझे शर्म आई। ओवरसीज कॉलिंग का खर्च खासा होता है। मैं पहले ही 15-20 मिनट बात कर चुका था। तुम्हारा शुक्रिया वनीला, तुम मेरे लिए जो कर रही हो इसका सिला तो सिर्फ खुदा ही देखा। लेकिन कभी मेरी किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मांग लेना। फिल वक्त तो तुम मेरी इतनी मदद करो कि मेरे साथ आओ और जहां मैं तुम्हें ठहराऊंगी वहां चुपचाप रहोगे, उसने कहा। वनीला मुझे फार्म हाउस से बाहर लाई। अब हम अकबी फार्म में खेतों से गुजर रहे थे। यहाँ संतरों और स्ट्रॉबेरी के पौधे लगे थे। इनके दरमियान से गुजरकर हम किसी कदर बुलंदी पर वाक़े उस विंटर हाउस में पहुंचे जिसकी साख्त में शीशे का इस्तेमाल बकसरत किया गया था। यह घर दरअसल शदीद सरमा के लिए बनाया गया था। दिन में सूरज की रोशनी इसे मुनासिब हद तक गर्म कर देती होगी, अलबत्ता गर्मियों में इसमें कदम रखने का सोचा भी नहीं जा सकता था। ये किसी भट्टी की तरह दहकने लगता होगा। इस वक्त भी वहां दिन की गर्मी मौजूद थी। मैंने वनीला की तरफ देखा। यहाँ तो मैं गर्मी से मर जाऊंगा। वो मुस्कुराई। अभी देखो। विंटर हाउस 2 बेडरूम्स, किचन और बाथरूम्स पर मुश्तमिल था। वनीला मुझे एक बेडरूम में लाई। उसने एक तरफ रखी भारी भरकम मेज का ना जाने कौन सा कोना दबाया और फिर इसे धकेला तो यूं आराम से खिसकती चली गई जैसे इसके नीचे पहिए हों। लेकिन सिर्फ मेज ही नहीं बल्कि इसके तले का फर्श भी अपनी जगह से हट गया था। नीचे लकड़ी की सीढ़ियां नमूदार हुई थीं
वनीला ने मुझे उतरने का इशारा किया। सीढ़ियां उतर कर हम नीचे आए, जहां एक आरामदेह और मुज़य्यन कमरा था। इसमें नरम बिस्तर, लाइट्स, एक अदद फ्रिज और खाने के लिए छोटी सी मेज भी थी। एक कोने में शीशे की मदद से बाथरूम बनाया गया था। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, जरूरत की हर शय है, वनीला ने कहा। सॉरी, इस तहखाने में रहने से बेहतर है मैं बाहर खुली फिजा में जेरी और टॉम के साथ रहूं। मैं जाने के लिए मुड़ा तो उसने लपक कर मेरा बाजू थाम लिया। ये क्या हमाकत कर रहे हो? किसी ने तुम्हें देख लिया और बात कर्नल बोगार्ड तक जा पहुंची तो? तब भी मैं इस तहखाने में रहना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि यहां से चला जाऊंगा। इस बेसरो सामानी की हालत में तुम कहां जाओगे? वनीला ने मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी। फिर 2 दिन की बात है, तब तक तुम यहां सुकून से रह सकते हो। मिस वनीला, गुज़िश्ता कई महीने से मैं सुकून ही से हूं और अब मजीद इस तरह कैद होकर नहीं रह सकता। अगर तुम मुझे कोई और जगह नहीं दे रही तो मैं यहां से अभी चला जाऊंगा। तुम यहां से नहीं जा सकते। कोई भी अजनबी फर्द जिसकी पुलिस को तलाश हो यहां पर 1 घंटे में पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि यहां हर फर्द दूसरे को जानता है। मैं यहां नहीं रहूंगा, मैंने हतमी लहजा में कहा। ओके बाबा, मगर अभी तो तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि 1 घंटे में रोशनी हो जाएगी और यहां पर हर फर्द को सुबह सवेरे उठ जाने का मर्ज है। इत्तिफाक से यह मर्ज हर देहाती इलाके में पाया जाता है, चाहे वो किसी पसमानदा मुल्क में हो या किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में। ठीक है, मैं सूर्य का रूप होने तक इस जगह रहने के लिए तैयार हूं, मगर अभी मैं बाहर जाऊंगा। बादल नख्वास्ता वनीला मुझे बाहर लाई। विंटर हाउस का किचन किसी कदर सर्द था। हमने वहीं डेरा जमाया। वनीला अपने और अंकल पाल के बारे में बताने लगी। इसके माँ बाप त्यारे के क्रैश में खलाक हुए थे जब वो सिर्फ 3 बरस की थी और इत्तिफाक से बीमार होने की वजह से अस्पताल में दाखिल थी, वरना वो भी प्लेन क्रैश में मारी जाती। इसकी परवरिश अंकल पाल ने की थी, जो इसकी माँ के खालाजाद भाई थे, वो इसे यहाँ ले आए। वनीला के माँ बाप जोहान्सबर्ग में रहते थे। इसके बाप की एक स्टील मिल में शराकत थी। इसके बाद ये दौलत वनीला के हिस्से में आई थी, मगर कई $मिलियन के मालिक होने के बावजूद वनीला ने अंकल पाल के पास से जाने का नहीं सोचा था, बल्कि वो यहाँ पर अंकल पाल के बनाए स्याफामों की बहबूद के इदारे के लिए काम करती थी, जो स्याफामों के लिए अस्पताल, स्कूल और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल होम चला रहा था। वनीला को अपने हिस्से से जो नफा मिलता था, इसका बेशतर हिस्सा इस NGO को जाता था। अंकल पाल की कहानी भी कम ट्रेजिक नहीं थी। नौजवानी में इन्हें एक स्याह फाम लड़की से मोहब्बत हो गई। उस वक्त यह मोहब्बत किसी जुर्म अजीम से कम नहीं थी। स्याह फाम और सफ़ेद फाम इतने अलग थे कि इनमें किसी किस्म का मिलाप नामुमकिन था। इलाके के इंतहा पसंद स्याह फामों को इस मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने एक रात लड़की के घर पर हमला किया और उसे इसके घर वालों समेत जिंदा जला दिया। इस वाक़े का अंकल पाल पर इतना शदीद असर हुआ कि इन्होंने शादी न करने की कसम खा ली और अपनी जिंदगी नस्ली इम्तियाज के खिलाफ वक्फ कर दी। तुम यकीन करो, स्याफाम अंकल पाल को देवता समझते हैं। इनके एक इशारे पर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस वजह से हमने फार्म पर कोई बाकायदा मुहाफिज नहीं रखा है। टॉम और जेरी काफ़ी हैं। टॉम और जेरी ये तो कार्टून किरदार है। इतने देवकामत कुत्तों के नाम भी जरा भारी भरकम होने चाहिए थे। दरअसल टॉम और जेरी आपस में भाई हैं। जब अंकल पाल इन्हें लेकर आए तो इतने शरारती थे कि मैंने इनका नाम टॉम एंड जेरी रख दिया। ये बिल्कुल उनकी तरह लड़ते थे। मेरा ख्याल है तुम लोगों को अपनी हिफाजत की तरफ मजीद तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तुम बैक वक्त 2 इंतहा पसंद ताकतों की नज़रों में खटक रहे होगे। वनीला सोच में पड़ गई। मैं समझ रही हूँ। स्याफामों की पुरतशद्दद तहरीक वस्ती जनूबी अफ्रीका के साथ अब इन इलाकों में भी जोर पकड़ रही है। इसकी मुखालफत में इंतहा पसंद सफ़ेद फाम भी मुनअज़्ज़म हो रहे हैं। हुकूमत इस खतरे को महसूस करके इसका सद्देबाब कर रही है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आम जनूबी अफ्रीकी, चाहे वो सफ़ेद फाम हो या स्याह फाम, इस खतरे को महसूस करें और इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मैंने सर हिलाया। स्याह फामों की इस तहरीक का मैं पास से मुशाहिदा कर चुका हूँ। वो लोग अफ्रीका से हर सफ़ेद फाम को निकालने का तहैया कर चुके हैं और इसके लिए सिर्फ हथियार इस्तेमाल करेंगे। इन लोगों को पास के कई स्याह फाम ममालिक के अलावा बाज़ ऐसी ताकतें भी मदद दे रही हैं जो जनूबी अफ्रीका को गैर मुस्तहकम देखना चाहती हैं। इन लोगों को पूरी कुव्वत से कुचल देना ही इस मसले का वाहिद हल है। जब हुकूमत इन्हें ख़त्म कर देगी तो इंतहा पसंद सफ़ेद फाम खुद बाज रहेंगे। इसे सर्द आहबरी कितनी मुश्किल से इस मुल्क से खून खराबा और नफरतें ख़त्म हुई थी। लगता है हमारी किस्मतों में सुकून से रहना नहीं है। सूरज निकलने पर वनीला ने मुझे नाश्ता दिया जो दूध और कॉर्नफ्लेक्स पर मुश्तमिल था, साथ में उबले हुए अंडे, टोस्ट और चाय भी। नाश्ता करके उसने मुझे तहखाने में पहुंचाया, इस वादे के साथ कि दोपहर के खाने के साथ वो मेरे लिए अखबार और वो खबरें लाएगी जो किसी अखबार में नहीं मिलती है। इस वक्त तक मैं सो सकता था। उसने मेरे कोहले के जख्म की ड्रेसिंग की पेशकश की जो मैंने जल्दी से मुस्तरद कर दी।
तुम आते हुए कोई मरहम पट्टी और हो सके तो मेडिकेटेड पट्टी लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लाऊंगी। उसने बगौर मेरा जायजा लिया। मेरा ख्याल है हेनरी के कपड़े तुम्हें आ जाएंगे। अगर बाहर निकलना पड़ा तो मैं नुमाया नहीं होऊंगा और वहां मुझे जूते भी चाहिए। इसने मेरे पाँव का साइज देखा। हेनरी के जूते नहीं आएंगे। घर में कहीं से बंदोबस्त कर लूंगी, अब तुम आराम करो। क्या मैं खुद इस तहखाने से बाहर नहीं जा सकता? मैंने पूछा। क्यों नहीं जा सकते, इधर आओ। उसने सीढ़ियों के पास एक स्विच बोर्ड दिखाया। इससे तहखाने की रोशनी और एयर कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें तीसरे नंबर का बटन दबाने से रास्ता खुला और बंद किया जा सकता है। ये देखो। उसने तीसरा बटन दबाया। तहखाने का रास्ता जो खुला था बेआवाज तरीके से बंद हो गया। दूसरी बार बटन पुश करने से रास्ता खुल गया। लेकिन यह बिजली से काम करता है। अगर कभी पावर सप्लाई फेल हो गई, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन इसका भी इलाज है। ये चौथा बटन दबाने से एक जनरेटर ऑन हो जाएगा और पावर सप्लाई करने लगेगा। शुक्रिया, अब मैं मुतमईन हूं। बेहतर होगा तुम सो जाओ, बिला वजह की फिक्र से महफूज रहोगे। मगर मैं सो नहीं सका। आने वाले वक्त के तफक्कुरात मेरी सोचों पर हावी रहे थे। क्या मैं इस मुल्क से निकल सकूंगा और क्या मैं काजल से मिल सकूंगा? अब मजीद मुझ में इंतजार की ताब नहीं थी। काजल को अपने भाइयों और माँ की परवाह के बगैर मुझसे शादी करना होगी। मैं इससे मजीद दूर नहीं रह सकता था। इसके लिए मैं ज़हरा बेगम की हर शर्त मानने को तैयार था। अगर वो जमशेद अली के गैर कानूनी कारोबार को अपने बेटों की मलकियत में देखना चाहती थी तो मैं इसके लिए भी तैयार था। मुझे वैसे भी हराम की इस कमाई से कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी फिक्र जान ग्रे की थी। वो आसानी से शिकस्त तस्लीम करने वाला शख्स नहीं था। बेशक मैंने उसकी बारूदी बेल्ट से निजात हासिल कर ली थी, मगर उबैद बिन सलाह और अहमद परवरी की सूरत में उसके पास 2 ट्रम्प कार्ड थे। बेशक जान ग्रे के सामने मैंने यही जाहिर किया था कि इनसे मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं है और उनकी मदद के लिए भी मैं जजीरे पर जाने के लिए तैयार नहीं था। मगर दर हकीकत मुझे उन दोनों से दिलचस्पी थी। इनका मिशन मेरा मिशन था। इस बदी के अड्डे की तबाही मेरा भी ख्वाब थी और इन दोनों को वहां से सही सलामत निकालने के लिए मुझे दोबारा इस कैदखाने में जाना पड़ता तो मैं इससे कतई दुरेग नहीं करता। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वक्त गुजारी के लिए मैंने वहां रख के एक रैक पर मौजूद किताबें देखी। इनमें से ज्यादातर बांटी के बारे में थी और जाहिर है मुझे इस इल्म से खासी दिलचस्पी नहीं थी। 1-2 नावल थे तो वो भी बोर ही लगे। मैंने सोचा ऊपर जाने के बारे में। अगरचे वनीला ने मुझे मना किया था कि मैं दिन की रोशनी में बाहर ना निकलूं, मगर ऊपर विंटर हाउस में जाने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने बटन दबाया और ऊपर आ गया। अगरचे बाहर वाले सारे शीशों पर पर्दे थे, इसके बावजूद कहीं कहीं से सूरज की किरणें अंदर आ रही थी और इनकी वजह से अंदर खासी गर्मी थी। मैंने बेडरूम का जायजा लिया। ये भी सादा सा था, सिवाय बिस्तर और मेज के खास फर्नीचर नहीं था। ऐसा लगता था कि वनीला और अंकल पाल इस विंटर हाउस को शाजी इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता वहां सफाई थी, यानी इस जगह की बाकायदगी से देखभाल की जाती थी। मैंने किचन का रुख किया क्योंकि इस घर में वही सबसे सर्द मकाम था। किचन के अकबी बाग में खुलने वाली बड़ी सी खिड़की से मुसलसल ताज़ा हवा आती थी। मैंने काफ़ी के लिए चूल्हे पर पानी रखा और कैबिनेट से मुझे नेस्कैफ का डिब्बा मिल गया। काफ़ी तैयार करके मैंने खिड़की के बाहर देखा। सामने संतरे के दरख्त पर कुछ संतरे लटक रहे थे, मगर इनसे कोई महक नहीं आ रही थी। पाकिस्तान में इस किस्म के संतरों से ऐसी महक आती थी कि जब कभी मार्केट जाना होता था तो दूर से इस महक को महसूस किया जा सकता था। मगरबी ममालिक खासतौर से यूरोप में मैंने ना तो फूलों की महक पाई और ना ही वहां लगाए जाने फूल खुशबूदार होते थे। हॉलैंड में गुल दाऊदी का मीलों पर फैला खेत देखा और उसमें इतनी भी महक नहीं थी जितनी कि जमशेद पैलेस में लगे गुल दाऊदी के एक फूल से आती थी। शायद इसकी वजह कीमियाई खाद और कीमियाई जरासीम कुछ अदवाया का बेतहाशा इस्तेमाल है, जिसकी वजह से फूलों और फलों की खुशबू खत्म हो गई है। मैंने फ्रांस में हाईवे के किनारे सेबों का एक अजीम शान पहाड़ देखा था, जिसे किसानों ने मतलूबा कीमत न मिलने पर एहतिजाजन वहां जमा कर दिया था और इस मीलों पर फैले पहाड़ से सेब की जरा सी खुशबू नहीं आ रही थी। मैं काफी पी रहा था कि अचानक बाग की तरफ से किसी के बोलने की आवाज आई और उससे पहले कि मैं किचन से निकलकर बेडरूम तक जाता वह विंटर हाउस का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अब मैं किचन से निकलता तो फौरी तौर पर उसकी नजरों में आ जाता, इसलिए मैं किचन में रहा था। एक मर्दाना आवाज आई, नीली तुम क्या चक्कर चला रही हो? तुम्हें ये सब चीजें किस लिए चाहिए? मैंने कहा ना मुझे गरीब आदमी की मदद करना है। इसकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाने के लिए मैंने इससे वादा किया था कि मैं किसी को इसका नाम नहीं बताऊंगी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मर्द ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर तुमने किसी की छुप कर मदद करना होती तो तुम इसके लिए सामान खरीद सकती थी, मुझसे ना कहती। सच बताओ कि यह क्या चक्कर है? तो मैंने तुम्हें यहां से जाते देखा था। तुम यहां सर्दियों में भी कभी कभी आती हो। इतनी सुबह यहां क्या कर रही थी? कुछ भी कर रही थी, वनीला झुंझला कर बोली। ये बताओ कि तुमने मुझे कपड़े देने हैं या नहीं?
टियर नीली, मर्द जो यकीनन हेनरी था, सर्द आह भर कर बोला, जब तुमने कहा है तो मैं अपनी खाल भी उतार कर दे सकता हूं, मगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो बातें करते अंदर बेडरूम में चले गए थे। तन्हाई पाकर हेनरी ने शायद बेतकल्लुफ होने की कोशिश की थी। नीली ने कहा, अपनी हद में रहो। कब तक? हेनरी ने दूसरी बार सर्द आह भरी। हम पहले ही खासी ताखीर कर चुके हैं। फादर जॉर्ज मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मैं तुम्हें लेकर कब चर्च आ रहा हूं। जॉर्ज अपनी फीस बटोरने के लिए सबकी शादियां कराने पर तुला रहता है। इसका बस चले तो शादीशुदा लोगों को भी दोबारा शादी करने पर मजबूर कर दे। काश कि वो तुम्हें रजामंद कर सके। मैं इसके बदले में मुंह मांगी फीस दूंगा, हेनरी ने कहा।